English Grammar in Use, written by Murphy. And the Unit 1 already has been done yesterday. Today's session is all about Unit 2. Here, as you can see, present simple. This is what we are going to cover today. The session certainly will be in bilingual, Hindi and English too. But I believe the way I'm speaking English, it's really not bothering you to understand what I'm saying. Okay? Super easy. Ultimate, our goal is to be perfect with English, whether the grammatical aspects are concerned or the fluency aspects are concerned. In all way, we are going to hit the acme. So let's do it. Unit 2, present simple. Okay? प्रेजेंट सिंपल करते हैं. आई डू का कैसे यूज होता है. सो स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन. एलेक्स इज ए बस ड्राइवर बट नाउ he is in a bed asleep. So now see, Alex is a bed driver. Alex is a bus driver, right? Alex bus driver है. But now he is in a bed sleep. लेकिन वो अभी bed asleep पे है. He is not driving bus. He is asleep. वह अभी सोता है. He is asleep. He drives a bus. वह बस ड्राइव करता है. He is a bus driver. यह बस ड्राइवर है और यह अभी सोता है. यह सोता है. सिंपल. ड्राइव जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल है ये, चाहे सिंपल प्रेजेंट, इसे हम इंडेफिनेट भी बोल देते हैं. इसमें सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं. इंडेफिनेट हम इसे इसीलिए बोलते हैं बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट टाइम. यहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम नहीं रहता है. दैट्स वाई वी कॉल इट डेफिनेट सेंटेंस. that's why we call it indefinite sentence. Okay, कोई टाइम नहीं रहता है. बट एक्सेप्ट दिस, ऑल जो भी टेंसेज है आप देखोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, सब में टाइम होता है. कब 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 वो सोया. व्हेन डिड ही स्लीप. अच्छा वो कल सोया, वो आने वाले कल सोएगा, वो सो चुका है. ओके, दैट हाउ सेंटेंसेस फॉर्म्स अप. बट हियर इन सिंपल प्रेजेंट, तो ये द tricks I'm introducing you, how we can recognize the simple present tenses. So the very first thing is that there is no time, and the another thing, it usually says about daily routine, habit, hobby or universal truths and general facts. मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया इन जस्ट 1 minute में what is all called present simple tense. बट ही ड्राइव्स अ बस. ही इज़ अ बस ड्राइवर. ओके, तो देखो ड्राइव के साथ इसका रूल ये है, सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ वर्ब लगता है, एंड देन वर्ब के साथ हम एस यूज़ करते हैं, एस और ई एस, एज पर द रिक्वायरमेंट. इफ़ देर इज़ ऑलरेडी ई देन वी यूज़ ओनली एस. इफ़ देर इज़ नो ई देन वी कैन यूज़ ई एस एज वेल. एज यू कैन सी हियर, डी आर आई वी के साथ एस लगा, डब्ल्यू आर के साथ एस लगा, डू के साथ es लग गया. does etc is the present simple tense. okay, so here are few pronouns. देखो आप यहाँ पे I we you they. I we you they के साथ we normally use drive, work, do etc. बट यहाँ पे जो कि हमारे सिंगल प्रोनाउन है, सिंगल प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करते हैं he, she, it, और वर्ब यहाँ पे एस हो जाएगी, एस और एस. ही ड्राइव्स, शी वर्क्स, इट डज. परफेक्ट. ही, शी, इट हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है. आई वी यू दे हमारे प्लूरल प्रोनाउन है. आई भी यहाँ पे सिंगुलर को ही रिफ्लेक्ट करता है, बट इट इज़ एन एक्सेप्शन हियर. ये एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन लाइक दैट्स वाई ग्रामर बिकम लिटिल डिफिकल्ट to understand, because we have few exceptions here as well. Exceptions in the sense there are no logical sense behind it, but we use it because that how the Britishers and the English countries people have been using it. Okay, so
There is nothing that's something we are reaching at the conclusion. No, there is no conclusion of this language. But yes, there is the learning and improvement. It's a language, again, no syllabus where we can get 100 out of 100. As I said, we only can be better in this with the sense. This is the most significant point here. Sense, understanding what the deliver wants to deliver and what the receiver wants to receive, a sort of communication and information. उसी पे all languages form. Let's connect with the B. We use the present simple to talk about things in general. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. ओके कुछ जिसे हम जिसे रिपीट करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, या तो डेली रूटीन आएगा इसमें हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या हमारी हॉबी या हैबिट, या यूनिवर्सल ट्रूथ और ए जनरल फैक्ट. ओके, लाइक जनरल ट्रू यहाँ पे लिखा है, और ए टाइम और ए एक्टिविटी जिसको हम रिपीट करते हैं बार बार. लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स. देखो ये एग्जांपल है, as you can see here. Okay, nurses look after, just a moment, where did it go? Let me bring that back. It's fine. So nurses look after पेशेंट्स इन हॉस्पिटल. नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल. जो नर्सेज है वो पेशेंट्स का देखभाल करती है. हाँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक जनरल फैक्ट है, डेली रूटीन भी हो सकता है. हाँ, जो नर्सेज है ना उनका यही काम है, दैट्स व्हाई दे गॉट द जॉब, क्योंकि उन्हें पेशेंट्स की ये देखभाल करनी है. तो देखो एक सेंटेंस बन गया इजीली. द नेक्स्ट वे, आई यूजली गो अवे एट वीकेंड्स. आई यूजली गो अवे एट वीकेंड्स. अच्छा, ये भी एक डेली रूटीन का पार्ट हो सकता है. अरे मैं ना अक्सर वीकेंड पे बाहर घूमने जाता हूँ, तो मैं जाता ही हूँ. हाँ, ये एक फैक्ट है. और लाइक सी सच सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड हियर. द अर्थ गोज अराउंड द सन. द अर्थ है वो गोज अराउंड द सन, इट लाइक रिवॉल्व्स अराउंड द सन. So yeah, it's also universal truth. The cafe opens at 7:30 in the morning. ओके, सो द कैफ़े ओपन्स. जो कैफ़े है वो उसका डेली रूटीन हो गया. ओके, हाँ, जो कैफ़े है ना वो हर रोज़ 7:30 ही खुलता है सुबह मॉर्निंग में. तो तो ऐसी चीज़ें आपकी, जैसे कि जो भी अगर आपने अपना डेली रूटीन बताना है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल इवनिंग, how your usual days look like, so you can use simple present tense only. I wake up at 6 a.m. After that I go to washroom. Afterwards I may take a little walk in the park. Later on I uh, do my home chores and get ready for the office. ऐसे आप सेंटेंसेस इसमें बना सकते हो. देखो मैंने थोड़े लाइक वोकेबुलरी इसमें यूज़ की, बट आप सिंपली बना सकते हो नॉर्मली कि देन आई गो टू ऑफिस. आफ्टरवर्ड्स आई रीच एट 10 p.m. टू माई ऑफिस. देयर आई इंटरेक्ट विद माई colleagues and do my work. At 12:30 I take my lunch. By 3 I come back at home. Then I go to market, buy some grocery, then go to gym and end up my day by doing little meditation. ठीक है, तो देखो पूरा का मैंने सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही था. ऐसे ही यूज़ आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है. ओके, इफ़ योर इंटेंशन इज़ अगेन सुपर सीरियस टूवर्ड्स इंग्लिश, सो हाँ, ये एक वीडियो में आई विल पुट इन नंबरेबल वैल्यूएबल थिंग्स टू यू एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी रहेगी. यही कि आपको अगर टाइम लगे 2-1 मिनट का अपना डेली रूटीन इसमें डिस्कस कर दो. ओके, कूल. Again, these sessions are basic till advanced. Okay, for everyone this session is, because मैं यहाँ पे ग्रामर में बहुत डीप भी जाऊँगा and I will make it easy as well, as the channel depicts easy advanced English. We say, अब हम क्या कहते हैं. अब देखो आई, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था रूल, आई वी यू दे के साथ ड्राइव वर्क डू, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही नॉर्मल लगती है. ही शी इट के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस लगा देते हैं. ठीक है, अब हम जा रहे हैं मोर एग्जाम्पल्स पे. वी से आई वर्क.
ओके, आई वर्क, मैं काम करता हूँ। अगर ही शी इट के साथ यूज़ करूँगा, ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की, इट मतलब कोई एक चीज़, लेकिन समझने की बात है ये ही शी इट है, एक ही पर्सन की बात हो रही है। और ये आई वी यू दे, इसमें बहुत सारे पर्सन है, लेकिन ये जो आई है ना, आई तो एक ही है, लेकिन यू दे वी ये सब बहुत सारे पर्सन है। आई जैसा कि मैंने बोला एक्सेप्शन है। ही वर्क्स, दे टीच, वो पढ़ाते हैं, दे टीच, ठीक है, वो पढ़ाते हैं। माई सिस्टर टीच, अब मैं खाली अपनी एक सिस्टर की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरी बहन पढ़ाती है, एक हो गई तो फिर वर्ब के साथ ई एस लगा देंगे, एस लगा देंगे। अगर देखो पहले से ई है ना, टी ई ए सी एच, तब खाली एस लगा दो। अगर जो वहाँ पे पहले से ई नहीं है तो फिर ई एस लगा दो, टीचेस, ठीक है ना। कुछ एक इसके भी रूल्स है, काम एस और ई एस लगाते हैं, that we will cover up here. As you can see for the spellings, S और ES, सी अपेंडिक्स सी 6 वो हम देखते हैं अभी। यू गो, तुम जाते हो, और लेकिन बट इट के साथ गोस लगता है, इट गोस। आई हैव, मेरे पास है, बट ही हैज़, उसके पास है, ठीक है ना, ऐसे लगता है। जैसे आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ पेन, ठीक है। वी यूज डू डज टू मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। हम इसका अब नेगेटिव बना रहे हैं, सी पॉइंट है ये, ओके। अब नेगेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस थे सारे, नॉर्मल अच्छे सेंटेंस थे, अब इसको हमने नाम में बनाना है नेगेटिव में। हाउ कैन वी मेक इट? डू, वी हैव टू यूज डू, आई वी यू दे वर्क। डू आई वर्क, देखो अब तुम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर लो। डू आई वर्क, डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं। डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो। डू दे वर्क, क्या वो काम करते हैं। डज के साथ यूज कर लो। डज शी डू, क्या वो करती है। हाँ देखो डज शी डू आएगा यहाँ पे, डज शी डू, यहाँ पे हम इसे अब एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, डू मतलब काम करना। डज शी डू, क्या वो काम करती है। डज शी ड्राइव, क्या वो ड्राइव करती है। ओके, डज, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे हमने डज शी ड्राइव बोला, यहाँ पे मैंने ड्राइव्स नहीं बोला, क्योंकि डज एस और इसका सेंस फुलफिल करता है, इसीलिए हम सीधा डज, जैसे हम बोलेंगे ही ड्राइव्स, वो गाड़ी चलाता है। लेकिन इसी को नेगेटिव बनाना होगा तो हम बोलेंगे कि डज ही ड्राइव, तो हम यहाँ पे ड्राइव्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये रूल्स है। डज ही ड्राइव, ओके। डज शी वर्क, डज शी वर्क्स नहीं बोलेंगे, डज शी वर्क। I we you they, here we are using I we you they, and I don't work, she doesn't drive, it doesn't drive, okay। देखो यहाँ पे सारे एग्जांपल्स लिखे हैं। Few more examples, I come from Canada, where do you come from, मैं तो कनाडा से आता हूँ, आती हूँ, तुम कहाँ से आते हो, तुम कहाँ रहते हो, ओके। देखो तुम कहाँ से आते हो इसका ज़रूरी मतलब नहीं है तुम कहाँ से आते हो, इसका मतलब ये होगा तुम कहाँ रहते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सेंस, हम किस सेंस में उस सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं। लाइक वी कैन नॉट ट्रांसलेट द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट इंग्लिश टिल हिंदी, नो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सेंसेस। आई हैव रेड मैनी बुक्स and it's not about the books, but I have experience in English language since my childhood, communicating with foreigners, observing their culture, lifestyle. English is I'm telling you one more fact about this language is that it's not just formed up by more countries, only few like countries formed that language, but even unintentionally they formed up, naturally they formed up। और जब वो नेचुरली फॉर्म्ड अप हुआ है तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत ही लॉजिकल सेंस में यूज़ हुआ है। मतलब जब जब ज़रूरत, इंग्लिश लाइक ब्रिटिशर्स थॉट दैट ओके दिस वर्ड, दिस वे ऑफ लाइफ स्टाइल इज रिक्वायर्ड एंड दैट सॉर्ट ऑफ वोकैबुलरीज आर नीडेड टू यूज जस्ट इन ऑर्डर टू hype our status maybe among people, or maybe just in order to do a little show off, or just to show our like standard of a well-being. That time they use such vocabs and phrases and the way they talk. In Hindi I don't think we uh, see or utter, like we utter a single word until it makes sense to us. Likewise in English, maybe वही words बोले जो उसमें बहुत ज़्यादा सेंस, मतलब मिनिमम वर्ड्स और मैक्सिमम सेंस इट शुड मेक। तो इस तरीके से इंग्लिश फॉर्मेट हुई है, बट अगेन टूवर्ड्स द एक्सपर्ट्स हुए देयर हु हैव formulated that blueprint for all learners around the world, so they can have a discussion, may go a little longer, but again
Just take your 30 minutes every day for these sessions, and I'm telling you, the qualities and the values and the things you will learn from here, you won't feel desire to look another video, and stick to the one video again and experience it. Okay, and the following examples, do is also the main word. Do you do, doesn't do, etc. What do you do? I work in shop. He's always so lazy. He doesn't do anything. Okay, so how do I do that? So lazy. And you know what he doesn't do anything. Be present. We use the present simple to say how often we do things. How often we do it? Not the question. Okay, I get up at 8 o'clock every morning. How often do you go to dentist? You does dentist drink? Guys, everything is not familiar about it. Hobby, habit, general fact. Okay, really doesn't drink too very often. Hobby doesn't do ज़्यादा कम से पीती है. Okay, she doesn't drink too very often. Robot usually goes away 2 or 3 times a year. अब ये किसका routine है? Okay, routine. Okay, robot usually goes away. वो हमेशा जाता है away 2 or 3 times a year. वो 2 or 3 times, 2 or 3 बार ही वो जाता है साल भर में. वो जाता है. Let's cover the last point, I believe. Okay, yes, 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 yes. I promise and apologize. Sometimes we do things by saying correct. When we promise to do something, we can say, I promise. You can promise that. When you select something, you can say, I promise. I promise a suggestion. I promise I promise I won't do it. I promise करता हूँ. लेकिन लेकिन करता हूँ. मैं promise करता हूँ. I won't. मैं लेकिन हूँ. Not I promise. Not I promise. What do you suggest? What do you suggest like this? What do you suggest like this? Think of this question. This like think of a question. What do you suggest? Should you suggest or should you I suggest that you have increased the time. In the same way, we say I apologize. और लाइक मैं एडवाइस करता हूँ और उनकी क्वेश्चन आई विल रिपीट करता हूँ कि मुझे फ्री अभी नहीं चाहिए. आई रिपीट दैट आई डोंट वांट टू. That's how I do. Complete the sentences using the following words: pause, close, go, like, speak, say. Okay, it's here let's go with one example. Tanya speaks German very well. So Tanya is okay. He, she, it, name. हर person के साथ जो देखो कब इसमें name वाला rule नहीं लिखा है. Name वाला rule इसमें नहीं लिखा है. Even with the name, but the singular is that मोटा मोटा समझ लो. There is a singular personality. That singular personality you use only as per English. And this also like this is an example. This sentence. Tanya speaks German. Speaks ही आएगा क्योंकि Dan and Jack. अब देखो दो लोग हैं Dan and Jack. What we should do? Dan and Jack. Uh, Dan and Jack. Jack. To the school. Go जाएगा कि go आएगा? Dan and Jack. यहाँ पे सीधा go आएगा because there are two people, right? There are two people and for them we would use go. Bad driving, many accidents. Bad driving cause. Bad driving cause. Causes आएगा कि causes आएगा. Bad driving causes आएगा. Okay, causes क्योंकि एक ही ड्राइविंग की बात हो रही है. Bad driving causes many accidents. The museum dash at 4 o'clock every Sunday. The museum closes. एक ही म्यूजियम की बात हो रही है. The museum closes at 4 o'clock every Sunday. Fifth है, my parents dash in a very small flat. My parents leave आएगा. Leaves नहीं आएगा क्योंकि parents obviously दो तीन लोगों से कभी parents नहीं. The Olympic Games dash places every 4 years. The Olympic Games takes. The Olympic Games takes. बहुत सारे गेम्स की बात हो रही है यहाँ पे. Olympic Games बहुत सारी गेम्स तो we can use take here. The Olympic Games take place every 4 years.
एंड जो ओलंपिक गेम्स है वो हर 4 साल बाद आती है, तो आती है देखो, आती भी नहीं टेक प्लेस, मतलब वो तो देखो यहाँ पे अब मैं the Olympic Games plays every 4 years. The every Olympic Games take take place तो मतलब साथ में तो ले सकते थे और बहुत कुछ ले सकते थे, वो take place जगह लेती है इस तरह की चीज़ें, मतलब ओलंपिक गेम तो आएगी ही आएगी, वहाँ पे हम ब्रिटिशर्स ने देखो ये फेस्टिवल से रखते थे ओलंपिक गेम है, वो तो आएगी आएगी, तो हमारे देश में ये गेम होती रहेगी, बहुत ही लोगों ने इसे बनाया है, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी ये स्पोर्ट्स इवेंट है, वो तो आएगी आएगी, वो प्लेस टेक लेगी, जगह लेगी लेगी, तुम्हें इसके लिए तैयार होना है। ओके, तो यही इसका सेंस है, so that's how the Britisher had like made it, you know. Olympic Games टेक प्लेस, ये बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी बोल सकते थे, अरे मैं शादी में मैरिज आ गया, लाइक द प्लेस विल बी टेकन बाय मी इन द मैरिज एट 6 AM, ठीक है, मेरे द्वारा शादी में आगे आगे आएगा, तो उस जगह मैं प्लेस ले लूँगा, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, okay, I will break it down more with the senses method session. Sense is very much sense एक समझ जाओगे कि दूसरी ये इसे क्यों बोलते हैं, ऐसा मतलब क्या ही हुआ होगा कि इस तरीके की वो इंग्लिश बोलते हैं, तो पीछे क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ भी बात बोल तो किसी को बोल एक एक बात बोलने के पीछे हज़ार रीजन होते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो आपको perfect आदमी put the verb into the correct form. ओके, अब ये प्रैक्टिस है, आप इसको कर लेना, खुद ही कर लेना। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, बट आई डोंट यूज इट, आई के साथ बट आई डू लगेगा, ठीक है ना, आई के साथ यूज करता हूँ, तो इसके साथ डज लग जाएगा, इसके साथ टेक्स लग जाएगा, इट टेक्स मी आर लग जाएगा, ओके, सो आई एग्जाम्पल देती हूँ आपको, इसमें साथ डू डज और वर्ब की प्रैक्टिस लगानी है, लेकिन कोई भी कोई परेशान नहीं, प्लीज़ आस्क मी आउट स्ट्रेट इन द comment section, I will reply and we will definitely answer. Complete the sentence using these verbs. Okay, यही सारे exercise है, you have to do it easily. You ask Lisa questions about herself and her family. Write the question. You know that Lisa plays tennis. You want to know how often. Ask her, how often do you play tennis? Okay, you want to know how often, वो conversation है, मतलब start कर दी है, बहुत अच्छी बात है। You know that Lisa plays tennis, तुम्हें पता है कि Lisa है वो टेनिस प्ले करती है, you want to know how often, तुम्हें पता है और कितना अक्सर, ask her, play, how often do you play tennis, तुम मतलब कितनी बार टेनिस खेलती हो, मतलब कितना टेनिस खेलती हो, like कितनी बार, कितना, बहुत सी चीज़ें, we cannot say precise to precise, just we can connect with the time, ये बात करती हो रही है, ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, कौन सा स्पेसिफिक टेंस है, और सेंस क्या है। This is it of the session, guys. Complete using the following. Okay, you can take the screenshot and complete these exercise. And if there is any query, you can ask me out straight in the comment section, the section. And here is the unit 3. We will cover up tomorrow. And I am also bringing up 2 translation series. The 2 series I will run. The first is the grammar, and the another is that translation. Okay, and I will bring more spoken conversations videos to you as well, so you could not see how we can learn, but you can learn how to perform